know me, I have only a past. I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a past. I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕ ಗೀತೆ ಶುರು ಮಾಡೋದಾಗ ಗಾಯತ್ರಿಜಿ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಜ್ಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕರೆದಾಗಿದೆ, ಹೇಳಿದ್ದಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ग्राहक गीते हरि ओम। मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम, शोषित पीड़ित ग्राहक जन का भाग्य बनाने वाले हम। जय ग्राहक जय ग्राहक जय ग्राहक शक्ति, अन्य किसी की मुंह की रोटी हरना अपना काम नहीं, पर अपने अधिकार गवा कर सकते आराम नहीं। अपने हित औरों के हित का मेल मिलाने वाले हम, शोषित पीड़ित ग्राहक जन का भाग्य बनाने वाले हम। जय ग्राहक
जय ग्राहक शक्ति। रोटी कपड़ा मकान शिक्षा आवश्यकता जीवन की। व्यक्ति परिवार सुखी हो तभी होगी सच्ची। हंसते राष्ट्र कार्य में शक्ति लगाने वाले हम। शोषित पीड़ित ग्राहक जन का भाग्य बनाने वाले हम। जय ग्राहक शक्ति। भारत का सुख गौरव प्राणों से भी प्यारा है। युग युग से मानव हित जना भाग्य बनाने वाले हम। जय ग्राहक शक्ति। वंदे मातर। धन्यवाद। ग्राहक शक्ति। Welcome to all. Okay. First, the taking a welcome speech by माननीय श्री अरुण देशपांडे जी। अरुण देशपांडे जी ज्वाइन अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है। Not yet joined. So he will join in between. He will take 10 minutes that time. Okay. So you can start with the sessions. Is it okay now? Okay. Next session will start. Or waiting for the welcome speech. Respected dignitaries and Karyakartas from different parts of our country, I welcome all of you to this legal awareness training program. We have now today we have delegates like A.V. Baburji is with us, senior our leader is with us, and P. Manjula ji is also with us, and Aditya ji, and today's session will be taken by Sudhir Ravindran ji also. So I welcome all dignitaries and all the Karyakartas to this program. So we can start with the sessions. Shiv Prasad ji, please. Thank you. Welcome speech idea. First session. Welcome. Durga Prasad ji or join Adro. I'll just check with him. Durga Prasad ji. Namaskar sir. Namaste ji. Durga Prasad ji also joined with us. Arun ji is, we are waiting for Arun ji also. Durga Prasad ji, Namaste ji. Namaskar sir. Namaste ji. Ji, welcome. Actually, we started our session. We started our program actually. Sessions need to be started. So I request Durga Prasad ji to say a few words for at 5 to 10 minutes. Thank you.
माननीय अरुण जी उपस्थित है क्या? अरुण जी को वेट कर रहे थे। हाँ, वो मेरे को अभी फोन किया, कोई सामग्री भेजी थी, उसी को देख रहा था मैं, इसलिए विलम्ब हो हाँ, गया। अच्छा जी। हाँ, वो ढूंढने वाले उन्होंने कोई सामग्री भेजी थी। अच्छा जी, आप अभी बात करेंगे या बाद में? अभी मेरे को सेशन। तो लास्ट में रखा है ना, हाँ समारोह जी। के समय। अभी तो अरुण जी का रखा था। हाँ जी, अभी ऐसा नमस्ते मुझे बताओ। नमस्ते वेट कर रहे हैं अरुण जी को। जुड़ हाँ, गए क्या शिव अरुण जी? प्रसाद जी। namaste. We have a time 10 minutes of introducing ourselves, everyone. That one will take time, I think. Huh? No, just 10 Ah, 4 minutes. okay After जी। that the Arun ji is coming. हाँ, after अरुण जी। after that after that I'm calling अरुण जी, but नहीं, अरुण okay. अरुण जी आ रहे हैं, इस बीच में कुछ विषय रख in सकता time हूँ। we have introducing ourselves. ओके जी, ओके, जी जी। ओके, ओके। यहाँ इस वेबिनार में उपस्थित सभी कर्नाटक और कर्नाटक से बाहर के जो भी बंधु इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, ये पहला एक ऐसा कार्यक्रम है, जैसे मुझे अभी अरुण जी ने जो सामग्री भेजी है और जो परिचय दिया है, उसके अनुसार ग्राहक पंचायत के प्रारंभ में हमने एक लीगल टीम बनाई थी और उस लीगल टीम ने जिस प्रकार काम किया और उसके बाद काफी अंतराल के बाद ये कार्यक्रम दोबारा शुरू हुआ है और इसमें जो सामग्री आई है उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि हमारे इस कार्यक्रम में जो भी हमारी फैकल्टी के रूप में हमको मार्गदर्शन देंगे, उन लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की है, विषय को बहुत ही गंभीरता से और उसके मूल रूप से ही उसका अध्ययन करके और हमारे सामने वो विषय रखेंगे। तो ये एक ऐतिहासिक दिन है आज ग्राहक पंचायत के इतिहास में। हमारी जो लीगल टीम है, उसके जो एक्सपर्ट्स हैं, वो हमारे जीवन के सभी आहार व्यवहार शिक्षा और जो ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं, पांचों जो हमारे अंग हैं, उन पर अपना एक रिसर्च पेश करेंगे। तो ये मैं बहुत ही प्रसन्न हूं ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटीज के लिए जो कर्नाटक के द्वारा शुरू की गई है। ये बेंगलोर है, वो ज्ञान की धरती है और इस ज्ञान की धरती से पूरे देश को एक ज्ञान की श्रृंखला जा रही है, एक ज्योति प्रकट हुई है, वो सब जगह जाएगी। सारे प्रांतों में भी इस प्रकार के अगर कार्यक्रम होंगे तो जो हमारा उद्देश्य है इस देश के ग्राहकों को, कारण कि कानून का राज है देश में और कानून के सिस्टम के आधार पर हम उसका क्रियान्वयन भी करके और कानून क्या आवश्यकता है, उस कानून बना हुआ है उसमें क्या संशोधन होने चाहिए या ऐसा कौन सा नया कानून बनना चाहिए, ये भी हम इसमें विचार करेंगे और एक समाज को राष्ट्र को हम नई दिशा देंगे। और हमारा राष्ट्रीय स्तर का जो नेतृत्व है वो जितना सक्षम होगा उतना ही सक्षमता से हम समाज की सेवा करेंगे। इसलिए हम हमारे उद्देश्य को पूरा करें, ऐसा मैं आशा करता हूं और इस कार्यक्रम में वही स्तर वही स्टैंडर्ड रहेगा, ऐसी अपेक्षा करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद जी। अरुण जी, वेलकम अरुण जी। शिव प्रसाद जी। Okay, welcome to Arun ji. Addressing his welcome speech. Namaste Arun ji. Our Rashtriya Sachiv Arun ji is with us. We cordially welcome Arun ji to inaugurate this program. I request Arun Deshpande ji to have few words with us. Say few words, please. Thank you.
अनम्यूट करना है जी, अनम्यूट, म्यूट है, अनम्यूट करना है। अरुण जी। हाँ, अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, जी, आ रहा है, आ रहा है। हाँ 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 हाँ। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी माननीय दुर्गा प्रसाद जी, उपस्थित सभी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के भिन्न भिन्न जिम्मेवारी के साथ में आए हुए जुड़े हुए अधिकारीगण, विशेष तौर पे मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं हमारी कर्नाटक टीम जो इस वेबिनार को अरेंज कर रही है, और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने अभ्यास भी किया है। ऐसा अभी दुर्गा प्रसाद जी ने भी बताया कि हमारा लीगल एस्पेक्ट हम देखने वाले हैं, हमारी बहुत सारी ऐसी बातें हैं उसमें जो हमारे ग्राहक होते हैं, और ग्राहक की जो समस्या सुलझाने के लिए बहुत सारा हम जो प्रयास करते हैं, उसके लिए उसकी कानूनन जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, मैं मेरा एक अनुभव शेयर करता हूं कि जब मैं एक जिला स्तर पे काम करता था तब, या मैं प्रांत स्तर पे भी काम करता था, उस वक्त की स्थिति ऐसी थी कि हमारे पास में दर्जनों ऐसे ग्राहक आते थे कि जिनकी समस्या भिन्न भिन्न प्रकार की होती थी, और जब ये भिन्न भिन्न प्रकार की समस्या वो लेके आते थे तो उनका कैटेगराइज करना बड़ा मुश्किल जाता था। उस वक्त मुझे अच्छी याद है, हम हमारे जो जिला की टीम थी लगभग 22-25 ऐसे हमने उसके सब्जेक्ट लिए थे, उसके विषय लिए थे, और वो विषय के एक एक दूसरे को हमने वो बांट दिए थे। लेकिन ये जब प्रांत स्तर का काम होता है, ये जब केंद्र स्तर पे जाता है और हम जब देश भर पे काम करेंगे, तो इसमें कुछ ना कुछ समानता होनी चाहिए। ये समानता होने के लिए धीरे 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 हमने ये सब देखा है कि ग्राहक की पूरी समस्या, जितनी भी ग्राहक होंगे उनकी सब समस्या, ये 5 कैटेगरीज में हम सेग्रीगेट कर लिए है। सबके सब, सुबह से लेके शाम तक, टूथपेस्ट से लेके इवनिंग में गुड नाइट का वो लगाने तक, ये सब की सब समस्या ग्राहक को जो आएगी, वो सब समस्या अभ्यास करने के लिए एक कैटेगरी करने की आवश्यकता थी, वो हमने कर ली है। और वो करने में कर्नाटक प्रांत के कार्यकर्ता का बहुत अच्छा सहयोग मिला है। ये जो विषय होते हैं, हम जैसे हमारा एक संगठन का विषय है, जागरण का विषय है, ग्राहक मार्गदर्शन सेवा केंद्र का विषय है, उसी तरह से इशू बेस जो हमारे विषय है, जो मुद्दाधिष्ठित है, जो इश्यूज है, उसको हम हिंदी में आंदोलन कहते हैं, उसको अंग्रेजी में इशू बेस कैटेगरी हम डालेंगे। और ये इशू बेस कैटेगरी जो है, ये आंदोलन का जो हिस्सा है, इसमें हमें कार्यकर्ता भी बहुत लगते हैं और उसका ज्ञान भी बहुत लगता है। हालांकि हम ये समझते हैं कि हमारा ग्राहक अपने आप में इतना होशियार बनना चाहिए कि उसको ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ता की आवश्यकता ही ना पड़े, और इसलिए हम जागरण का विषय जोर से पकड़ते हैं। लेकिन फिर भी सबको तो सब चीजों का ज्ञान नहीं हो सकता, और इसीलिए हमने भी ये तय कर लिया है कि ग्राहक के संबंध में आने वाले सभी इश्यूज जो है, वो ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ता को अभ्यास करने के लिए एक स्ट्रक्चर उसका होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर हमने जो तैयार किया है इशू बेस्ड मैटर्स के लिए, वो आंदोलन इस नाम से है, और उसके 5 आयाम हमने किए हैं। वो 5 आयाम में पहला है आहार, दूसरा है व्यवहार, तीसरा है आवास निवास, चौथा है शिक्षण, और 5वां है आरोग्य। इसके बाहर हमारे कोई विषय नहीं है, पूरे के पूरे विषय जो है हमारे इसमें आ जाएंगे।
आहार का विषय है, वो खाद्य इसमें आ जाएगा। खाद्य पदार्थ के जितने भी संबंधित विषय आएंगे सब इसमें करेंगे। इसमें कानून भी आएगा। इसमें हमारी जो रचना रहेगी वो दोनों प्रकार की भी रह सकती है। व्यवहार, ये विषय ऐसा है कि जो बचे हुए चारों में नहीं बैठता वो सबके सब यहाँ पे बैठेगा। बैंकिंग से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स परचेसेस, ऑनलाइन परचेसेस, एवरीथिंग एवरीथिंग। आवास निवास शब्द ही अपने आप में वो बता देता है। आवास यानी मेरे घर के बाहर का परिसर, फिर कारपोरेशन का हो, म्यूनिसिपालिटी का हो, रोड का हो, स्पीड ब्रेकर का इश्यूज हो, ये सब विषय जो आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी का भी विषय उसमें आ सकता है। ये सब विषय व्यवहार में आए, आवास निवास में आएंगे। और निवास यानी मेरे अपना घर, रेरा से लेके वेरियस परचेसेस ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल, ये सब इसमें आएंगे। शिक्षण, आरटीआई, आरटीई से लेके अभी का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो, और फिर हमारे वही इश्यूज आते हैं जो गार्डियन को सताते हैं कि यही दुकान से आपने यूनिफॉर्म लेना है, यही दुकान से आपने किताबें लेनी है। ये सब जो विषय है, ये सब विषय उसमें आएंगे। फिर हमारे ट्रांसपोर्टेशन का विषय है, हमारे स्टूडेंट्स का, यहाँ से लेके इवन वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर सिलेबस अल्सो, कि ये सिलेबस में ये चीज जो है ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसके ऊपर भी। बिकॉज एज ए कंज्यूमर वो भी हमारा राइट है। आरोग्य, सबको मालूम है उसका नाम ही आरोग्य है। हॉस्पिटल से लेके जो भी भिन्न भिन्न कानून उसमें है, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, नर्सिंग एक्ट जो पुराना है, वो बहुत सारे एक्ट जो उसके संबंध में रहेंगे, वो सब विषय हमको उसमें करना। ये सब हमने 5 इसमें बांट दिए हैं। और जो कहीं पे भी नहीं बैठता है वो व्यवहार में बैठेगा। इंश्योरेंस, बैंक, परचेसेस, सब तरफ। अभी ये जरूरी नहीं है हमको कि ये कोई विषय इसमें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ये कहाँ पे आएगा? अब ये आवास निवास में ही आने वाला है, क्योंकि हमको आवास निवास के लिए लगता है। लेकिन अगर किसी प्रांत की टीम को ये लगता है कि ये इसको व्यवहार में डालेंगे, तो व्यवहार में डाल, प्रश्न ये नहीं उठेगा कि यहाँ पे डालना है, वहां पे डालना है। हमारे अभ्यास करने वाले कार्यकर्ता कहाँ कहाँ है और किसको किसको ये जिम्मेवारी देना है, उसके लिए हमने ये व्यवस्था की है। इसलिए जो भी यहाँ पे प्रांत के कार्यकर्ता अभी उपस्थित है, उन्होंने ये 5 विभाग के अपने प्रांत के स्तर पर 5 अधिकारी, 5 टीम हमको बनानी है। ये ध्यान में रखना है वो टीम किस तरह से काम करेगी, ये अब ये कर्नाटक के कार्यकर्ता जिन्होंने इसके ऊपर बहुत सारा अभ्यास किया है उसका वो इलॉबरेट करेंगे हम सबको। इवन उन्होंने तो ये भी हमको सुविधा दी है कि उनका कोई क्वेश्चन, हमारा कोई समस्या होगी तो वो जिज्ञासा होगी तो उसके बारे में भी हम सवाल कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमारा पूछ सकते हैं, उसका भी समाधान वो बताने वाले हैं। मैं फिर एक बार इन सबको धन्यवाद देता हूं और आगे जो विषय है वो उसका संचालन करने के लिए प्रार्थना करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद जी, giving a wonderful speech about APGP, what is working on with different sectors. Very thankful to Arun Deshpande ji. And I request to all participants, if you have any questions, you put your questions on chat box. The first session, first training session taken by A.V. Bagurji. Kindly be welcome, Bagurji. The leading is over. APGP legal community, and also is working a vice president in APGP Bangalore, Mahanagara, and working as an advocate in Supreme Court and also High Court of Karnataka, Bangalore.
in the name of Bagur and Associates. Yeah, he's taking his first session on food sectors. I request A.V. Bagurji. I request to take first session Bagurji. नमस्कार अरुण देशपांडे जी, दुर्गा प्रसाद जी और सभी महान भाव कार्यकर्ता को सादर प्रणाम। मैं एवी बागुर बेंगलुरु से बोल रहा हूँ और गायत्री जी को भी थैंक्स कि मुझे आज बोलने का मौका दिया है। और आई विल बी टेकिंग ए स्मॉल सेशन ऑन आहार फूड और हमारे एबीजीपी कार्यकर्ता का इस फील्ड में क्या रोल हो सकता है और देश सेवा समाज सेवा में वो क्या कर सकते हैं। वैसे एबीजीपी का एक कॉर्नर मोटो है कि ये एक एनजीओ है, एक्टिविस्ट है, बट ये कन्फ्रोनिस्ट नहीं है। एनजीओ का नाम सुनते ही हम लोगों के मन में ये आता है कि वो कन्फ्रोनिस्ट है, दंगा फसाद करते हैं, एजिटेशन करते हैं, इस प्रकार का एक इमेज बन गया है एनजीओ का। उसको हट के एबीजीपी के लिए एक बहुत बड़ा रोल है इस सोसाइटी में काम करने के लिए। आज हम उस विषय में और उसको कैसे उसको एक लीगल अमली जमा पहना सकते हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले लेट मी ड्रॉ अटेंशन टू सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 39A of the Constitution states the state to direct its policies towards securing that all its citizens have right to an adequate means of livelihood। अब ये livelihood का बहुत सारे definitions हैं। One of the definitions is कि उसको human dignity चाहिए। Food is one of the elements of that human dignity। That is Article 39A, which is part of the fundamental rights। दूसरा Article 47 है। Article 47 comes under the directive principles of state policy। ये कहता है state to raise the level of nutrition and standard of living of its people as a primary responsibility। ये एक बहुत ही बड़ा डायरेक्शन स्टेट को दिया गया है और स्टेट शुड एंश्योर कि कॉमन आदमी हर सिटीजन का न्यूट्रिशनल लेवल शुड बी रेज टू ए लेवल ऑफ सस्टेनेंस। एक अच्छा न्यूट्रिशन लेवल जब तक सिटीजन को नहीं मिलेगा वो कैसे एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकता है। इसलिए आर्टिकल 47 का डायरेक्शन के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स आए हैं हाई कोर्ट्स के, अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के और बाकी डायरेक्शंस आए हैं। इस वक्त हम उसके अंदर जाएंगे नहीं। बेसिकली क्या है, आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज राइट टू लीगल रेमेडीज और आर्टिकल 226 दैट इज अ रिट रेमेडी। ये दोनों को अगर हम इसके साथ पढ़ेंगे आर्टिकल 47 के साथ, इसका मतलब ये है राइट टू फूड हम लोग एक फंडामेंटल राइट की एंगल से हम लोग देख सकते हैं और उसको एनफोर्स भी करा सकते हैं थ्रू वेरियस रेमेडीज। वो हमारा एबीजीपी का सेंट्रल बॉडी जो है उसका एक दायित्व आता है। कार्यकर्ता को अगर लगता है कि ये रेमेडी यूज करना है तो वो सेंट्रल बॉडी को एडवाइस कर सकता है। कैसे एडवाइस करेंगे, कैसे जाएंगे, वी विल कम टू दैट इन ए फ्यू मिनट्स फ्रॉम नाउ। बट आर्टिकल 47 को अगर हम लें, उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कई सारे लॉज बनाए हैं। क्या क्या लॉज बनाए हैं, एक ब्रॉड पैरामीटर हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहला जो एक्ट है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA बोलते हैं, 2013 में आया था। इसके अंदर बहुत सारे आयाम हैं इंक्लूडिंग बफर स्टॉक्स, कहाँ स्टॉक रखना चाहिए, कैसे मेंटेन करना चाहिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर है। इसके बाद में एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है कि फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फूड, जिसके अंदर IFCI आते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आता है और उसके अंदर कई सारे लॉज अप्लीकेबल है। कोल्ड चेन मैनेजमेंट का है और बाद में वेयर हाउसिंग का है, बहुत सारे एक्ट्स रेगुलेशंस हैं। ये सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ फूड के अंदर आता है। तो उन लोगों ने ये लॉज बनाया है। उसके बाद में ये डाउन द चैनल हम जाते जाएंगे तो फिर मनरेगा आता है, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम आता है, BPL कार्ड आता है, फिर अलग अलग सिस्टम बनाए हैं स्टेट गवर्नमेंट में जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड टू द नीडी पीपल, हाउ टू आइडेंटिफाई द नीडी पीपल, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ये हर एक चीज हर लेवल में एक इश्यू बना है और बना रहेगा। ये कार्यकर्ता एबीजीपी कार्यकर्ता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ डिस्कशन है और हम लोग आज उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। 2014 के बाद जब मोदी जी गवर्नमेंट बनाए उसके बाद में एक नया कॉन्सेप्ट आया
डीबीएस, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो फूड हो, चाहे वो फूड रिलेटेड सब्सिडी हो या बेनिफिट हो, वो डायरेक्ट ट्रांसफर टू द नीडी बेनिफिशियरीज है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, नया एक ऑनलाइन मैकेनिज्म है। ये कैसे काम करता है, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 2 मिनट के अंदर, ताकि हमारे कार्यकर्ता बिकम एम्पावर्ड। अच्छा, प्रॉब्लम आता है कैसे? इतने अच्छे अच्छे एगलिटेरियन लॉज बने हैं, इतने बढ़िया ब्यूटीफुल लॉज बने हैं, इतना अच्छा स्कीम बना है, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बना है, इसको सारे के सारे पब्लिक डोमेन में रखा गया है, पर लास्ट माइल जो होता है, जो आखिरी आदमी, जिसको हम लोग अंत्योदया बोलते हैं, जो बिल्कुल आखिरी छोर में खड़ा है, उसको कुछ नहीं मिलता है। उसको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट काफी सारे स्टेटमेंट्स देती है, काफी सारे प्रोग्राम बनाती है, बट इसका जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है, ये एबीजीपी कार्यकर्ता ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। इसको कैसे, हाउ टू गो अबाउट इट, इसका एक एंडलेस स्कीम है। हम लोग को कॉन्स्टेंटली इसको बार बार मिलना चाहिए, बार बार डिस्कशन करना चाहिए, चाहे लीगल टीम हो, चाहे वो एक्टिविस्ट टीम हो, ग्रास रूट लेवल में हम लोग सब मिलकर करेंगे। तो जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि हमारा एग्लिटेरियन सोसाइटी हो, सारे के सारे लोगों को राइट टू लाइवलीहुड हो, अच्छे से खाना मिले, ये हम लोग एंश्योर कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम आता है किधर है? ये प्रॉब्लम इसलिए आता है कि जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, जो लास्ट गोडाउन है, जो लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, वहां से वो जो डिस्ट्रीब्यूशन फेयर प्राइस शॉप होता है या जो स्टोर होता है, उसके बीच में जो भी होता है, वो अभी तक गवर्नमेंट के कंट्रोल में आया नहीं है। ये किसी करप्शन के कारण हो सकता है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण हो सकता है, या मैसिव वेस्टेज। हम लोग जब ट्रेन में जाते हैं देखते हैं ऐसा फूड का इतना वेस्टेज होता है। दिस कुड बी द रीजन कि क्यों हमारा जो आखिरी आदमी है, जो आखिरी लाइन में आखिरी आदमी खड़ा है, जो सबसे गरीब आदमी है, जिसकी आवाज नहीं है, जिसके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, वो भूखा जाता है हर रोज। ये जो भी है, हमारे एबीजीपी कार्यकर्ता लोग इसको बड़ी अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट कन्फ्रंटेशन। हम लोग लड़ाई करने नहीं जा रहे, हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसका एबीजीपी कार्यकर्ता कैसे काम कर सकता है, इसको अब मैं डिस्कस करना चाहता हूं इन सम ब्रीफ। इसमें सबसे पहले एबीजीपी कार्यकर्ता को अपना लोकल एरिया डिफाइन करना चाहिए कि कार्यकर्ता का जो लोकल एरिया है, जो लोकल टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है, उसका ही शुड हैव ए क्लियर आइडिया कि मेरा ये ज्यूरिसडिक्शन में यहाँ काम करना है। तो इस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जो लोकल ऑफिसर्स हैं, चाहे वो कोई भी हो सकता है, पुलिस का ऑफिसर हो सकता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर हो सकता है, तहसीलदार हो सकता है, लोकल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो सकता है, ही कुड बी एनी पब्लिक सर्वेंट जो अपना सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लेता है, वो पब्लिक सर्वेंट है। एबीजीपी कार्यकर्ता इज ए कांस्टेंट कंपेनियन टू दिस पर्सन। ये कौन आदमी है, किधर बैठते हैं, इनका फोन नंबर क्या है, ये कितने बजे मिलते हैं, कब मिलते हैं, इनके पास पिटीशन डालने का जो प्रोसीजर है वो क्या है। एबीजीपी कार्यकर्ता को पहला डेटाबेस ये बनाना है कि हमारे जो टेरिटोरियल एरिया में कौन पब्लिक सर्वेंट है जिसको मैं अप्रोच करूंगा, एंड हु इज सपोज टू इंप्लीमेंट दिस लास्ट माइल एक्टिविटी ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन टू द कॉमन मैन। ये हमारा सबसे पहला काम है कि हमारे जो लोकल एरियाज के जो ऑफिसर्स हैं, उनका डेटाबेस हमारे सामने टेबल में हो, हमारे डायरी में हो, हमारे मोबाइल में हो, हमारे क्या बोलते हैं फास्ट डायलिंग कॉन्टैक्ट लिस्ट होता है, उसके अंदर मेंटेन करें। वी हैव टू हैव ए कांस्टेंट कॉन्टैक्ट विद लोकल पब्लिक सर्वेंट्स। ये सबसे पहली बात है। दूसरा, एबीजीपी कार्यकर्ता को इनसे मिलना है। ये हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे फ्रेंड है। इन लोगों से हम अगर बात करेंगे, इन लोगों को हम लोग अगर एक्सप्लेन करेंगे, इन लोगों को हम अवेयर कराएंगे कि देखिए यहाँ पर ये हो रहा है, तो 90% ये लोग हमारे साथ इमीडिएटली काम करेंगे। कुछ एक दो होते हैं जो करप्ट है, जिनका इंटेंशन अलग होता है, जिनका अपना एजेंडा होता है, वो बात अलग है, पर 90% उससे भी ज्यादा लोग, मैं खुद ही एक पब्लिक सर्वेंट था, तो आई कैन टेल यू कि कोई अगर हमको बताएगा कि देखो इस जगह में काम नहीं हो रहा है, वो 110%, चाहे वो रात के हो, दिन के हो, किसी भी समय में हो, डेफिनेटली कार्यकर्ता के साथ जाएगा और वो काम करेगा पब्लिक सर्वेंट। तो मेरा रिक्वेस्ट कार्यकर्ता के साथ है कि सबसे पहला काम यही है कि हमको हमारे आजू बाजू, अड़ोस पड़ोस और डोमेन एरिया में और हमारे टेरिटोरियल एरिया में जो काम करने वाले पब्लिक सर्वेंट हैं, उसका डेटाबेस मेंटेन करना है, ताकि हम इमीडिएटली कांटेक्ट करें उन लोगों को। दूसरा इंपॉर्टेंट काम कार्यकर्ता का ये है
उसको उसको अपनी टेरिटोरी, अपना डोमेन एरिया, अपना जुरिस्डिक्शन में कितना बजट अलोकेट हुआ है, कितना पैसा अलोकेट हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में, किस जगह से आ रहा है, चाहे वो मिनिस्ट्रियल बजट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट हो, स्टेट गवर्नमेंट का बजट हो या सब्सिडरी बजट हो या ट्रांसफर ग्रांट हो, किसी न किसी मैकेनिज्म से उसका जो लोकल एरिया है, चाहे वो पंचायती एरिया हो या छोटा सा अपना कस्बा हो, जो भी है, अपने एरिया में उसके पास कितना पैसा आया है, ये उसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। एक कुछ सम डेटाबेस ही हैज टू मेंटेन। दूसरा, ये पैसा किसी पर्पस के लिए ग्रांट होता है। ये जो सीएजी का जो मैनुअल है उसमें ये कहा है कि जब ये पैसा अलोकेट होता है, एक हेड से दूसरे हेड को ट्रांसफर नहीं होता है। ये तो एबीजीपी कार्यकर्ता को जैसे ये फिगर मालूम पड़े कि मेरे अलोकेशन में, मेरे एरिया में इतना पैसा आया है, वो सबसे ऑर्डिनरी साधारण आदमी हुए भी, ही कैन बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलसी, तहसीलदार, कलेक्टर, वो सब कुछ हो सकता है वो, प्रोवाइडेड ही हैज गॉट दिस इंफॉर्मेशन। उसको मालूम होना चाहिए कि मेरे ये पैसा उसी का तो है, ये किसका पैसा है, हमारे एबीजीपी कार्यकर्ता का पैसा, उसको पैसा दिया गया है बजटरी एलोकेशन में, तो ही इज मास्टर ऑफ दैट मनी, ही कैन मॉनिटर द मनी। ये पैसा आया था, किधर गया, उसी प्रोजेक्ट को जाना चाहिए जिसके लिए एलोकेशन हुआ है। ये एक लीगल नेसेसिटी है अंडर द सीएजी एक्ट। दूसरा क्या है, फंड एलोकेशन, सब्सिडी एलोकेशन भी होता है। मेन फंड एलोकेशन, जैसे अगर 100 रुपए एलोकेट हो गया फॉर ए पर्टिकुलर तहसील है या कस्बा है, उसके अंदर एलोकेशन भी होता है फर्दर, तो वो बजटरी एलोकेशन, इसको हम लोग बोलते हैं प्लान एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बात दूसरा, ये प्लान एक्सपेंडिचर जो होता है, ये पैसा ट्रांसफर नहीं होता है और ये पैसा लैप्स भी नहीं होना चाहिए। ये हर क्वार्टर को इसका अकाउंटिंग होता है कि इस क्वार्टर में ये पैसा खर्च हुआ है। ऐसा नहीं कि लास्ट मार्च के महीने में सारा पैसा एक ही बार खर्च कर दे। तो हमारे कार्यकर्ता को ये हक है कि ये पैसा को मॉनिटर करे, इसका फंडिंग क्वार्टरली बेसिस में डिवाइड करे, और इस क्वार्टर में ऐसा होना चाहिए, इस क्वार्टर में ऐसा होना चाहिए। चौथा बात यह है कि इसका टाइमलाइन होता है, जो अभी मैंने बताया, क्वार्टरली स्पेंडिंग। ऐसा नहीं है कि पैसा पूरा रखे रहे और बिल्कुल मार्च के एंड में खत्म कर दे, जनवरी में खत्म कर दे या बिगिनिंग में खत्म कर दे। तो ये टाइमलाइन होता है। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, ये टारगेट होते हैं। इसका टारगेट मतलब ये किसी बहुत स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही एलोकेशन होता है, इसको हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो जैसे ही ये साल बिगिनिंग होता है, जैसे ये बजट पास होता है, उसी दिन, उसके नेक्स्ट डे एबीजीपी कार्यकर्ता को ये डेटा बड़े आराम से मिल जाएगा, वेबसाइट से मिलेगा, बजटरी डॉक्यूमेंट से मिल जाएगा, मिनिस्ट्रीज का अपना वेबसाइट होता है, वहां मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से मिल जाएगा डेटा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो जो लोकल ऑफिसर है, तहसीलदार हो सकता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर हो सकता है, कलेक्टर हो सकता है, वो एक एक्शन टेकन नोट भेजता है अपने ऑफिस को कि मैंने ये पैसे का क्या करा है। एबीजीपी कार्यकर्ता को ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल है कि वो एक्शन टेकन नोट मांगे, इसको पढ़े और देखे कि उसके इलाके में ये एक्शन टेकन नोट इंप्लीमेंट एक्चुअली हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो उसके पास रिसोर्सेस है, कुछ मेथड है, नहीं हुआ है तो दूसरा सेट ऑफ मेथड है कि वो एक्शन ले सकता है। ये हमारे एबीजीपी कार्यकर्ता का सबसे पावरफुल टूल है। इसको कोई एजिटेशन की जरूरत नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद लोगों को इकट्ठा करो, कुछ जरूरत नहीं है। बस बैठे बैठे एक टेबल में ये काम हो सकता है। अच्छा, कोई काम नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए? सबसे इजी काम, एबीजीपी कार्यकर्ता जैसे ही अपने एरिया में कुछ पॉपुलर हो जाएंगे या थोड़ा सा वो एक्टिव होंगे अपने एरिया में, सबसे इजी है कि वो अपने तहसीलदार को, कलेक्टर को, पुलिस ऑफिसर को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर को एक फोन लगाए, मैं फलाना आदमी बोल रहा हूँ एबीजीपी का, देखिए ये कमी पेशी है। मैं आपको जैसे पहले बताया 110%, 99% जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई इक्का दुक्का होता है जो करप्ट है या काम नहीं करेगा, पर 99% लोग जरूर ये काम करेंगे, आज नहीं तो कल कर ही देंगे। तो आपको एक फोन कॉल लगाना है, बस एक फोन कर दीजिए कि ये काम नहीं हो रहा है, ये काम होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ, वैसे करना था, क्या होना चाहिए था। आपका एडवाइस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट टूल है। तो कार्यकर्ता को इतना एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कलेक्टर को फोन कर रहा हूँ या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को फोन कर रहा हूँ, तहसीलदार को फोन कर रहा हूँ, और बोलना चाहिए कि मैं एबीजीपी का कार्यकर्ता फोन कर रहा हूँ, ये काम नहीं हुआ है, ये होना चाहिए था। दूसरा, अगर ये फोन कॉल में बात नहीं होता है
तो आप एक सिंपल बड़ा अच्छे से प्यारा लेटर लिखिए, देखिए मैं एबीजीपी की तरफ से लिख रहा बोल रहा हूँ और ये काम होना था, काइंडली प्लीज अटेंड टू इट। ये सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है, इसको बोलते हैं एस्केलेशन स्टेप नंबर 1। इसको आप 5 दिन का टाइम दीजिए, 2 दिन का टाइम दीजिए, डिपेंडिंग ऑन की क्या सिचुएशन है, कितना एग्रीवेट हो गया है। मेरे हिसाब से इस लेवल में काम हो जाना चाहिए। बट अगर बाई चांस काम नहीं हुआ, इसको एक लेवल और एस्केलेट कर सकते हैं कि आप इनके बॉस को लिखिए, इनके जो हेड है उनको लिखिए। आपको ये जो हायरार्की होता है गवर्नमेंट में, बड़ा बड़ा ही ट्रांसपेरेंट हायरार्की है। आप इनके बॉस को लिखिए कि मैंने ऐसा बोला इनको, इन्होंने काम नहीं किया, इस काम नहीं करने से ये हो रहा है। तो ये अगर आप आखिरी आइटम नहीं भी बोलेंगे तो आप उनको समझ में आ जाएगा कि ये शॉर्टकमिंग है, ये डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस है, ये लैक्यूना है, ये जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ रहा है, ये बैड इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है। वो जो सीनियर ऑफिसर है, अगर उसको ये मालूम पड़ेगा, वो डेफिनेटली ही बिकम वेरी वेरी प्रोएक्टिव। आप इसको ट्राई करके देखिए एक बार। तीसरी बात, फिर भी नहीं होगा तो और एस्केलेट कर सकते हैं आप, इसके लिए बहुत लेवल जा सकते हैं। तो हर डिपार्टमेंट में एक सीवीओ होता है, चीफ विजिलेंस ऑफिसर, हर डिपार्टमेंट में होता है एक, या फिर एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होता है। जनरली दोनों एक ही आदमी होता है, वो सीवीसी का वो प्रोसीजर है। वो आप इनको लिख सकते हैं, देखिए हमारे तहसील में, हमारे गांव में, हमारे कस्बे में ये होना था, इसके लिए पैसा आया है, इसके लिए अलोकेशन हुआ है, एक्शन टेकन, नोट भी गया, पर काम नहीं हुआ है। ऐसा आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड लेटर लिखेंगे, बहुत ही पावरफुल है ये इतना पावरफुल टूल है आपके हाथ में कि कहीं पब्लिक में आ गया, न्यूज़पेपर को पहुंच गया, ऑपोजिशन पार्टी के हाथ में पहुंच गया, कोई भी गवर्नमेंट ये होने नहीं देगा, वो जरूर ये काम करेगा आपका। इसके बाद नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट लोक आयुक्ता तो है ही है, कहीं कहीं स्टेट गवर्नमेंट में लोक आयुक्ता नहीं है, तो वहां पर आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये सारे के सारे 6 काम करने के बाद भी आपका काम नहीं हो रहा है, तो आप एबीजीपी का जो आपका जो सेंट्रल ऑफिस है वहां ये सारा डेटा भेजिए। वो एबीजीपी वाले जो है सेंट्रल ऑफिस, जो लीगल सेल है, वो डिसीजन लेंगे कि इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन लेना है, रिट फाइल करना है, डायरेक्शन लेके आना है, ये उनके लेवल में मिनिस्ट्रियल एक्शन लेना है, क्या करना है, ये वो एक काम ले सकते हैं। लास्ट में ये हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो गया। लास्ट में फूड इज ऑल्सो ए प्राइवेट ट्रेड बिटवीन ए कंज्यूमर एंड ए सप्लायर या मैन्युफैक्चरर। तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर आता है कि अगर हम लोग मैन्युफैक्चर्ड पैकेज्ड फूड अगर दुकान से खरीदते हैं, वो फूड के लिए क्या होना चाहिए, एक्सपायरी डेट के अंदर होना चाहिए, उसके ऊपर पूरा लेबलिंग होना चाहिए। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है, ये बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है। इसमें अडल्ट्रेशन के लिए पनिशमेंट्स है, 2-3 एक्ट है अडल्ट्रेशन के लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी है। 2019 का एक्ट के अंदर बहुत सारा प्रोविजंस है, जिसमें एबीजीपी कार्यकर्ता के लिए इतना सारा टूल्स अवेलेबल है कि अगर वो इसमें से 1% भी काम करेंगे, समाज के अंदर बहुत ज्यादा सुधार आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि एबीजीपी कार्यकर्ता आगे चल के इसी प्रोग्राम को हम और इन डेप्थ इंप्लीमेंट करेंगे आगे चल के, क्योंकि आज तो एक मैक्रो लेवल प्रोग्राम है, बहुत सारे आयाम हैं आज के दिन। तो मैं चाहता हूं कि आज इतना ही एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे कि हम लोग क्या करना चाहिए आहार के फील्ड में, और लीगली तो फिर आगे चल के हम लोग फिर और सेशन लेंगे, शायद गायत्री जी इसका डिसीजन लेंगे इन कंसल्टेशन विद अदर सीनियर लीडर्स। तो आई विल एंड माय टुडे सेशन विद दिस कि एबीजीपी कार्यकर्ता एकदम उनके पास इतना टूल्स है कि बिल्कुल मतलब ब्रह्मास्त्र है उनके पास, और हम लोग है ही यहाँ पर काम करने के लिए। तो आप शुरू हो जाइए, हम आपके पीछे हैं, आपको जो टूल चाहिए, जो असिस्टेंस चाहिए, सब कुछ देंगे। और गायत्री जी तो बहुत एक्टिव है इस फील्ड में, एंड वी विल ऑल वर्क टुगेदर फॉर बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। नमस्कार और धन्यवाद। धन्यवाद जी। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪಾಗರ್ಜಿ, giving information about food sector, what is the food sector is doing, our role in food sector, APGP Karyakartas. And next session is taking by Sri Manjunath ji. Welcome to Manjunath ji.
Manjunath ji to session. Thank you, Babu ji. Manjunath ji is working a legal committee member in and also senior most RSS in Rashtriya Swayamsevaka Sangha. He is professionally working advocate in Supreme Court. No, High Court. High Court, okay. And High Court in and CC of cyber law. In cordially welcome to Manjunath ji taking second session about Manjunath ji is actually RSS Swayamsevak. Last 25 years, he is working on that criminal as well as civil cases he is handling from since 25 years. He is a successful advocate. I welcome Manjunath ji to take a session on Awas Nivas. That means environment and housing. I request Manjunath ji to take this session. Thank you. Good evening, one and all. Good evening, sir. Awas Nivas, it is a very vast subject and it will take weeks together. If it is expanded, it will take weeks together. Therefore, now it is an introductory. ಅದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ Now it is an introductory. Therefore, we should restrict what are the documents are required in order to purchase the properties in any property, site, agriculture land, building, apartment. While purchasing the property, we should know some of the documents very relevant. Even some of the peoples don't heard some of the documents which I am going to canvas before now. Now the vital document is village map. It is a village map is a mother document. Based on the village map, the entire documents are bond. Subsequently, after the village map, we should go through the Tippani copy. Tippani copy pertaining to survey number is concerned. One pertaining to survey number is concerned, the revenue authority used to prepare a Tippani copy. In a survey number, if the property is divided, then it is comes under Issa Tippani. Issa Tippani next, Issa Tippani Uttar. Based on the document, Atlas also prepared, Pakka book also prepared, Akar Band, Kardana Kala, Tippani Uttar Bankana Kalam, Residuary Tippani Uttar, secondary Karab Uttar, secondary reclassification Uttar, Karab Uttar. I think some of the person while purchasing property, those are all documents will not consider because these documents are very important. Therefore, while purchasing property, we should go through all those documents what I have stated now. The other documents are based on the survey document in 1909. The revenue department used to prepare documents as a preliminary records. That is earlier document. As per the Mysore Land Revenue Code, the preliminary records used to prepare Ketwar Patrika and RR5, RR6. That is IL and RR. IL means Index of Land and Records of Rights. Next one is we should go through the documents RTC, that is Pahani. Since from 1948 till date, till purchasing the property,
all the this artisans are required. Next document is all mutation, how the transaction it took place, mutations, IHC, DCB register, Kata certificate, tax certificate, tax paid receipt, approved plan, RERA certificate, RERA commencing certificate, RERA ending certificate, and building plan certificate, completion certificate, and moreover, the very much required document is family tree. Title deed which includes partition deed, will, mortgage, gift, release deed, exchange deed, grant certificate, GPA, general power of attorney, and agreement cell, and other documents, title deed documents. And another document is encumbrance certificate. Encumbrance certificate, since from 1940, we should go through the documents since from 1942 till purchasing of the document. And next document is no objection certificate from the whether property is acquired or not is concerned, KIDB certificate, BDA, BBMP, government authority, whether the properties are acquired or not is concerned, all those documents are required. The next document is no objection certificate from the competent authority, that is Tahsildar and Assistant Commissioner, in respect of PTCL Act. PTCL Act means Scheduled Caste, Scheduled Types, Prohibition of Transfer of Certain Land. NTC, No Tenancy Certificate. Next, 17A and B, 80 of Land Reforms Act. Next certificate is death certificate of the family members. Next documents is litigation, if any before the court. Court means you should go through the DRT, Revenue Authority, District Court, and other courts also is concerned whether litigation is going on or not. That documents also required, and we should go through that document. Whether the next document is whether that land belongs to the government or not is concerned, we should go through that document also. Whether the land grabbing case is pending before the land grabbing court also is concerned, we should go through that document also. And another document is whether the amount has been paid in cash in respect of sale transaction is concerned. All of know that from 1/4/2017, there is no transaction about 2 lakh in cash manner. If the amount is paid in a cash manner about 2 lakh, then the seller has to pay double the amount of the cash transaction sale consideration amount, and purchaser has to pay one time entire amount. Suppose if a property purchased by the person 1 crore rupees, then purchaser has to pay 1 crore rupees to the government as a penalty in a tax department, and seller has to pay 2 crore rupees to the government as per the notification. And next document is plan approval. Whether the plan is approved by the competent authority, we should go through the plan approval. That is Town and Country Planning Act, BDA approval, and other local authority approval is there or not, we should go through that document also. Next document is whether the revenue site is, whether it is comes under a revenue site, Gram Tana site, plan approved by the site, and site, we should know that document also. Whether next document, we should go through whether the property is agriculture land or non-agriculture land, whether the conversion is done by house purpose, commercial purpose, industrial purpose, or any other purpose. And we should get the Aadhaar card. We should get the Aadhaar cards of all the family members for the purpose of identification. Next document is gas bill. Gas bill, some of the persons used to asking about gas bill. Why the gas bill is required? Because the gas bill is accurately shows where the party is residing and where he is residing. In respect, while transferring the gas bill, you should give proper address. Therefore, we should get the gas bill.
And in respect of while going through the all the documents, we should know the legal knowledge also. As per section 55 of the Transfer of Property Act, there is a clear provision, cave tempter. Cave tempter means, it is a Latin word. Cave tempter means let the buyer beware. Let the buyer beware. So buyer should beware entire things and legal knowledge. A person should not say, I don't have legal knowledge. Ignorance of law should not, there is no excuse. Then we should, while purchasing property, we should have the legal knowledge and also acts is concerned. What are all the acts applicable in Karnataka is concerned? Karnataka Land Revenue Act and Rules 1964, Karnataka Land Reforms Act 1961, Bangalore Development Act and Rules 1976. Now recently the government has passed the act, that is BBMP Act, Bruhat Bengaluru Mahanagara Palika Act 2020, which came into existence from 21/12/2020. Then we should have the knowledge about the Real Estate Regulation and Development Act 2000 Act. That is, normally it is called as a RERA Act. Next, Right to Fair and Compensation and Transparency Land Acquisition Rehabilitation Act and Resettlement Act 2013. Earlier it was considered as a Land Acquisition Act. Now it has amended and called it as a Right to Fair Compensation and Transparency Land Acquisition Rehabilitation and Settlement Act. That is came into force on 2013. The next document, the next act is Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prohibition of Transfer of Certain Land Act, which came into force on 1/1/1979. And according to me, it is a very dangerous act. Because of this reason, if the property is granted by the government to the Scheduled Caste and Scheduled Tribes, then the entire property goes to the resumed to the party, that is grantee. That too without any consideration. Purchaser cannot get any compensation from the any person. And therefore, it is a very dangerous act. And next act is Karnataka Forest Act. Next, another act is Karnataka Certain Abolition Act 1979. Next, the Hindu Succession Act. Hindu Succession Act 1956, 1994, 2005. Next, Indian Succession Act. The Indian Succession Act normally used to applicable Christian communities. Next, Mohammedan law. Mohammedan law is also applicable in respect of Mohammedan law, and it is also very danger while purchasing Hindu person. The people should know about Mohammedan law, because in the partition Mohammedan law, there is a class residuary and sharer. There is a two types of share in the Mohammedan law. Therefore, they will take a different contention. Therefore, we should aware about the Mohammedan law is concerned. Next act is Limitation Act. Next, Transfer of Property Act, Cooperative Societies Act, Registration Act, the Benami, the Prohibition of Benami Property Transaction Act and Rules 1998. It has been amended 1/11/2016. Next, Town and Country Planning Act, Income Tax Act, Karnataka Government Park Prevention Act 1975, National Highway Authority of India Act, Karnataka Apartment Acts, and Surface Act. Therefore, we should know the entire, these are all acts. In respect of the above said acts is concerned, it will take too much time. Therefore, we should know all the documents and also acts. Insofar as village map is concerned, briefly I will explain about the village map, why it is required village map. In the village map, in earlier era, it is a manually prepared. Now, if you want any person to go through the
village map, kindly note down SSLR. SSLR, there is a website. If you go through the SSLR, then all the person will get the village maps. In the village map, you can go through the how the village map is there, and in the village map, what are all the SSLR contents are mentioned. What are all the contents are mentioned in the village map? It is clearly goes to show that there is a road. If there is a road mentioned in the village map, it is absolutely government property. It is comes under B Karab. Therefore, no one person is having a right about the B Karab land. It is absolutely government property and public property. It cannot be transferred, and it, even if a person gives any permission to transfer that road, then entire transaction is void. And if in respect of a tank is concerned, that is called as kere in Kannada, kere. Tank is also concerned. There is a. It is also mentioned in the village map. And if the village, if you go through the village map, if the person going to purchase, sell the property in the village map road, then the entire sale property is void. Next, Tippani copy. Tippani copy pertaining to land, that is survey number, that is 4 acres, 2 acres, 3 acres, like that. Next, Issa Tippani. If the Issa Tippani is comes under based on the Tippani, that is, if the property is 4 acres, it is divided into four parts or 5 parts, then 6 parts. Then it is the documents are made as a Issa Tippani. Issa Tippani Utar, based on the document, Issa Tippani will be prepared. Next document is Atlas. Atlas pertaining to a particular survey, particular sketch is concerned, it is prepared. Pakka book means, Pakka book, the owner's name and also sketch is used to mention in the Pakka book. And Akar Band also. Akar Band also, what are the documents, how the property is, what is the extent, what is the Karab land, what is the A Karab, what is the B Karab land, and what is the remaining, what is the, which are all mentioned in the Akar Band. Insofar as Karda Nakalu is concerned, it is a vital document in the earlier proceedings, earlier survey, the Karda document has prepared. In the Karda document, the ownership and possession is also mentioned in the Karda Nakalu. Next, Tippani Utar. Tippani Utar means the contents also mentioned in the Tippani Utar. Resurvey Tippani Utar. Kindly consider in Karnataka, during the year 1903, the first survey was conducted, and based on the survey, the village map was prepared, and in entire Karnataka, based on the village survey map, the survey was conducted. That is the first survey during the year 1903. The next survey was conducted during the year 1932. That is the first survey. Then next, another survey was conducted during the year 1962. That is the second survey. Now it is subsequently after the survey, that is from the 1962, there was no government survey was done in entire Karnataka, and based on the secondary survey classification, the entire survey is going on. Even till today, the government has not surveyed the entire property. That is the secondary classification. Secondary Karab Utar. Karab Utar is also, what is the Karab? Karab means a person shall not cultivate the property on the Karab land, whether it is A Karab land or B Karab land. That is, those are all documents which are all very relevant for kind consideration. Therefore, the next revenue documents is preliminary record. Now we are all well aware that now it is the RTC is going on in respect of
ownership is concerned. Earlier, the preliminary records was in existence. That is during the year 1909. Ketwar Patrika also prepared by the Tahsildar office. It was the earlier documents. Now the mutation is preparing in respect of transfer of the property is concerned. How the property was transferred based on the sale deed, mortgage deed, gift deed, or IHC. Earlier to that mutation, there was a RR, records of right 5 and 6. It is called as ILRR, Index of Land Records of Right. If you go through the IL and RR, the entire proceedings, how the property was acquired by the so many person is concerned, we will go through that ILRR. Now, subsequently after ILRR, the entering the documents is concerned, RTC was started during the year 1948. From 2000, earlier 1948 to up to 2000, there was a handwriting RTC, handwriting Pahani. After 2000, all RTC are in the computer manner. So from 2000, the government has stopped writing the RTC in hand manner. So we should go through the all document. Now it is only introductory. Therefore, kindly go through the all document while purchasing the properties and also acts. Insofar as entire discussion is concerned, we will discuss later. Thank you, one and all. Thank you very much. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಂಜುನಾಥ್ ಜಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಜಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. बहुत छोटे से समय में इतना सारा विस्तृत जानकारी दिया. क्या क्या मेन हेडिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए करके. धन्यवाद जी मंजुनाथ. Thank you. Prasad ji. Next session Video on ಮಾಡೋ ತರ ಇಲ್ಲ ಜಾಗ. Next session taking by Sri Sudhir Raghavendra ji. Sudhir Ravindra ji is taking Karnataka Dakshiniya Pranta. One minute. Okay, please. Shall I proceed? Which is Prasad ji? Okay. Welcome, Sudhir Ravindran ji. I request Sudhir Ravindran ji to take this next session on Arogya Kshetra. Mainly, Arogya Kshetra is very important in today's situation. So, it is very, very important, and everyone should know legally how to proceed. Any issues occurs, right? So, Sudhir Ravindran ji is our Karnataka Pranta Sangatan Mantri, and professionally he is an IT consultant in healthcare sector. Is working, and he's having many years of experience in. He worked in IBM and other companies, mainly in the government healthcare projects. So he is well versed, and he is one of the member in our legal committee, and he is responsible for SOP to create in Arogya Kshetra. I welcome Sudhir ji to take this session. धन्यवाद गायत्री जी.
नमस्ते अरुण जी, नमस्ते सैनी जी, और बाकी हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और वरिष्ठ स्वयंसेवक सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। मैं एक प्रेजेंटेशन का प्रयोग करूंगा क्योंकि इसमें कुछ डायग्राम और ये सब मुझे प्रस्तुत करना पड़ रहा है। तो गायत्री जी, मैं ये प्रेजेंटेशन में अपना स्क्रीन से शेयर करके कर रहा हूँ। आप जरा गाइड कीजिए अगर वो प्रेजेंटेशन सही में। हाँ, ओके, आप कर लीजिए। आप हाँ। प्रेजेंटेशन पहला स्क्रीन शेयर कर लीजिए। हाँ, स्क्रीन शेयर कर लीजिए पहले। हाँ, हाँ, हो रहा है। Present now is there, no? Click on that. Your entire screen or window. Better window you select and Yeah. that presentation you select. Okay. Share your entire screen आया है। Okay. So there you have to select PowerPoint presentation. Click that, then you share. Yes. ये screen. Presentation. Yes. Yes. Full screen you put. Yeah. ओके, ये अभी क्लीन है ये? हाँ, क्लियर है जी। क्लीन है। तो हेल्थ केयर सेक्टर में मैं पहले तो इसके जो मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा और कैसे ये सेक्टर वर्क करता है। इसमें कई विभाग हैं और ये पूरा एक इकोसिस्टम है जिसमें सरकार का भी भागीदारी है, इंस्टीट्यूशंस का भी भागीदारी है, प्राइवेट केयर प्रोवाइडर्स का भी भागीदारी है, जुडिशरी का भी भागीदारी है और ये सब का जो महत्व ग्राहक को मिलना चाहिए और इसे ऐसे मिलना चाहिए ताकि बोथ प्रोफिलैटिक और क्यूरेटिव दो चीज का फोकस होता है। प्रोफिलैटिक बोलने से कि हम अपनी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और दूसरा जो है क्यूरेटिव हेल्थ केयर, ये दोनों को विचार में रखते हुए आज का जो युग चल रहा है एक मंथन सा बना हुआ है अभी। तो हमारे इंडियन सेटअप में जो इंस्टीट्यूशंस और जो कुछ जो पार्ट्स है इसमें वर्क करते हैं उसका एक रूपरेखा है इसमें। तो आप देखिए ये कैसे वर्क होता है कि इसमें बहुत सारे एक्ट्स हैं, एक्ट्स के ऊपर कुछ रूल्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने बनाया है, कुछ ऑर्डर्स भी हैं जो कुछ ऑर्डर्स मतलब सुप्रीम कोर्ट से आ चुके हैं, कुछ हाई कोर्ट से आए हुए हैं, जिसका रिलेशंस है इस एक्ट्स और रूल्स के कारण, क्योंकि वो एक्ट्स और रूल्स के परिपक्व नहीं होने के कारण वो ऑर्डर्स का भी महत्व है वहां पे। इसके साथ में जो दूसरा महत्वपूर्ण चीज है जो कि है स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स बोले तो एक केयर प्रोवाइडर किस तरीके से वो केयर हमें देता है। तो ये केयर प्रोवाइडर जो होता है ये कई अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड में केयर प्रोवाइडर्स को क्लासिफाई किया गया है, जो इंडियन
क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के द्वारा। पहले ये एक्ट और रूल्स के पहले मैं ये कॉन्स्टिट्यूशनली कहाँ पे हम खड़े हुए हैं उस पे मैं थोड़ा फोकस करना चाहता हूं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट हेल्थ केयर एक स्टेट सब्जेक्ट है और सिर्फ आर्टिकल 47 के द्वारा ही एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल का ही महत्व है उसमें। तो ये पूरा जवाबदारी और पूरा दायित्व एक स्टेट का होता है कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। बट इसी के साथ ही क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कोई उसमें योगदान है, इस चीज का भी डिटेल में मैं उसको जितना मेरे से हो सकता है मैं उसमें जाऊंगा। अभी जो करंट सिचुएशन में जो जितने भी जो केयर प्रोवाइडर्स हैं वो सभी को गवर्नमेंट ने क्लासिफाई कर दिया है। जो प्राइवेट प्रोवाइडर्स हैं जो कि डायग्नोस्टिक क्लिनिक्स हो, चाहे क्लिनिकल सिंगल डॉक्टर क्लिनिक्स हो या फिर डे केयर क्लिनिक्स हो, स्पेशलिटी सेंटर्स हो या मल्टी स्पेशलिटी सेंटर्स हो, ये सब का विवरण दो बॉडीज ने जोड़ के किया हुआ है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के द्वारा बनने वाले काउंसिल्स। ठीक है, तो अभी मैं ये एक्ट्स और उस चीज के ऊपर थोड़ा फोकस करूंगा, लेकिन साथ में जो लेफ्ट साइड में जो है ये जुडिशियरी और कंज्यूमर कोर्ट्स का भी उतना ही महत्व हो चुका है आज के इसमें, क्योंकि जहां पे एक्ट्स रूल्स और ऑर्डर्स में क्लैरिटी नहीं है तो रोल जुडिशियरी का हुआ है कि उसको कैसे इंटरप्रेट करना है। इस चीज को भी मैं थोड़ा सा डिटेल में लेके जाऊंगा। अब उसके साथ में अगर केयर प्रोवाइडर जो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से केयर नहीं दे पा रहा है तो रेगुलेटर्स होता है। जैसे कि मैंने बोला कि हेल्थ केयर एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो रेगुलेटर भी स्टेट का हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर में आ चुका है। स्टेट का हेल्थ डिपार्टमेंट, अभी इसको जस्ट मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाता हूं। तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो कि एक ऐसा एक्ट है जो कि ये कंट्रोल करता है हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट को। तो इसमें क्या हुआ कि जब ये 2010 सुदीप जी, वो जो हाइड कर सकते हैं वो जो इसमें शेयरिंग। हाँ, यस। थैंक यू जी। ठीक है, थैंक यू जी। हाँ। तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो कि हेल्थ केयर के सभी यूनिट्स को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, 2010 में बनाया गया था। 2010 में बनाया था और वो रोल आउट हुआ 2012 में। और मेन उद्देश्य ये था कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो फैसिलिटीज है वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करे, उसमें मिनिमम पर्सनल्स हो, ताकि और पर्सनल्स के जो क्वालिफिकेशन हो वो भी कितना होना चाहिए उस चीज का भी वर्णन है उसमें। और मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स कैसे होना चाहिए इस चीज का भी वर्णन है। और जो एसेंशियल है जैसे कि इमरजेंसी सेटअप होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए, ये भी उस चीज का वर्णन है उसमें। और सबसे आखिरी में जो है वो है डिटेल्स ऑफ रेट्स, चार्ज एंड फैसिलिटीज, उसको लिंक है उसमें। तो ये एक्ट बना 2012 में रिलीज हुआ और सभी स्टेट्स को ये ऑप्शन था कि आप इसको अडॉप्ट कर लीजिए। और और उस टाइम में क्या हुआ कि कई स्टेट्स का पहले से ही बना हुआ एक्ट था, तो क्या हुआ कि इस मॉडल एक्ट को सभी स्टेट ने एक्सेप्ट नहीं किया। अभी जो लास्ट स्टेटस है जो 2020 का स्टेटस है कि केरला, गुजरात और
आई थिंक राजस्थान, एक और स्टेट है, मैं अभी याद नहीं आ रहा, कि ये तीनों अभी भी प्योर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में नहीं आए, उसका इक्विवेलेंट एक्ट नहीं है उनके पास में। और बाकी सब स्टेट ने जो पहले से एक्ट अपना खुद का बनाया है, उन्होंने ऐसे डिसीजन ले लिया कि हमारा पहले से ही एक्ट है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को हम फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि हमारा खुद का एक्ट है। कर्नाटका में 2017 में कर्नाटका गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को इस एक्ट में लिया जाएगा, क्योंकि स्टेट को वो अथॉरिटी था कि प्राइवेट को भी ले सकते हैं और गवर्नमेंट को भी ले सकते हैं। गवर्नमेंट में मतलब गवर्नमेंट के जो तीनों टियर है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ये और टीचिंग इंस्टीट्यूशंस, ये सभी को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन उसका कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए उन्होंने बहुत कम स्टेट ने उसको कंसिडर किया है। तो ये इस एक्ट के ये एक ऐसा एक्ट है, और इस एक्ट का जो कहाँ पे डेफिशिएंसीज है, मैं इसको थोड़ा आगे नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाऊंगा और बताऊंगा। इस एक्ट का कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है कि इस एक्ट में, एक मिनट, हाँ, इस एक्ट में जो स्टैंडर्ड्स फॉलो किया गया है वो तीन मुख्य घटों में है। एक तो डायग्नोसिस के लिए एक स्टैंडर्ड बना है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में। इसका जब हम इसको कंसिडर करते हैं कोई ऐसे कंट्री या कोई ऐसे एस्टेब्लिशमेंट से जिसमें उसका परिपक्वता पूरा होता है, तो इसलिए क्या हुआ कि जो आईसीडी 9 और 10 है, ये जो डायग्नोसिस स्टैंडर्ड्स है, ये वर्ल्ड ओवर में चलता है क्योंकि ये WHO द्वारा दिया गया है, और करीब 20-22 हजार डायग्नोसिस केसेस, मतलब डायग्नोसिस डिसीज को डायग्नोसिस के कोड में कन्वर्ट किया गया है। यहीं पे हमारे इंडियन सिस्टम में उसको शॉर्ट कर दिया गया है। तो क्या होता है कि वो हर चीज को हम जो कॉम्प्लिकेटेड, जैसे कॉम्प्लिकेटेड जेनेटिक केसेस हो जाते हैं, जो कि ऐसे सब कई कॉम्प्लिकेटेड केसेस वो हमारे जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के जो कोड दिया है उसमें कवर नहीं हो रहा है। तो ये एक शॉर्टकमिंग आ रहा है उसमें। सेकेंडली, ये आईसीडी जो है वो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता है, वो ऑप्शनल रखा गया है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल को कोडिफिकेशन करना है कोई डायग्नोसिस, तो वो उसके ऊपर है, वो करे या ना करे, बट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है करके क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में दिया गया है। तो क्या होता है कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल अपना एक मेडिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, उनके हॉस्पिटल सिस्टम रहता है, उसमें हमने हर पेशेंट को, हर ग्राहक को एक पेशेंट आईडी दिया जाता है, वो अपना, और जो अच्छे अच्छे एस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल्स हैं वो मेंटेन करते हैं। लेकिन क्या होता है कि कोई स्टैंडर्ड नहीं है उस चीज पे। वो यहीं पे क्या हो रहा है कि हम काफी डेविएट हो जा रहे हैं कि हमारा एक रिकॉर्ड, जो मेडिकल रिकॉर्ड है, वो एक हॉस्पिटल का दूसरे हॉस्पिटल में उसको फॉलो करना नहीं होता है, उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है। हम वो मेडिकल रिकॉर्ड या तो पेपर फॉर्म में लेके जाते हैं या उसका प्रिंट आउट लेकर के जाना पड़ता है, वो डिजिटली शेयर नहीं होता है यहाँ पे। तो दूसरा है कि प्रोसीजर कोड, यहाँ पे भी जो प्रोसीजर कोड, क्योंकि प्रोसीजर्स में जैसे सर्जिकल प्रोसीजर हो गया या इंटरवेंशनल प्रोसीजर हो गया या नॉन इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स हो गया, ये सब का भी इंटरनेशनली एक कोड है जो कि है सीपीटी कोड, कॉमन प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। इसमें एक इश्यू है कि जैसे
आईसीडी कोड है जो WHO का है उस वैसा नहीं है। सीपीटी कोड में क्या होता है कि उसको लाइसेंसी करना पड़ता है, और लाइसेंसी ऐसा नहीं है कि वो कॉस्टली लाइसेंसी है। ये यूएसए के जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन उनके वही लाइसेंस होल्डर है, लेकिन $100 ही है उसका कॉस्ट। तो कोई भी अगर हॉस्पिटल उसको यूज करना तो उतना कॉस्ट देना पड़ता है उनको। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो आज का जो सिचुएशन बना है हेल्थ केयर का हमारे देश में, उसका वर्णन कुछ इस तरीके से हो जा रहा है कि एक तरफ से टेक्नोलॉजी एक कॉन्स्टेंटली जो मेडिकल इकोसिस्टम है वो एक बदलाव के इसमें ही चलते रहता है, कंटिन्यूअसली बदलाव होते रहता है। आप अभी के कोविड सिनेरियो में देख लीजिए कि एक RT-PCR ऐसा हो गया कि एक कॉमन चीज हो गया, जबकि RT-PCR जैसा एक जो हमने कभी भी RT-PCR बहुत कम रेयर केसेस में वायरल का जेनेटिक कोड्स को सीक्वेंस करने के लिए यूज किया जाता था। अभी ऐसा हो गया कि RT-PCR एक नॉर्म हो चुका है, और वायरल के लिए बिना RT-PCR के हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक स्ट्रेन का वायरस आया, उसके बाद दूसरा स्ट्रेन का वायरस आ गया, और वो दूसरा स्ट्रेन का वायरस का RT-PCR का जो लाइब्रेरी बनता है वो अलग है। तो दो लाइब्रेरी से उनको चेक करना पड़ेगा। अगर स्ट्रेन के बारे में देखना नहीं है, स्ट्रेन के बारे में नहीं देखना है, सिर्फ कोविड वायरस देखना है, तो उसका जो बेस कोड्स है जो दोनों स्ट्रेन में कॉमन है उसका लाइब्रेरी बना करके आपको RT-PCR करना है। तो मैं इसमें क्या देख रहा हूं कि जो हमारा हेल्थ केयर इकोसिस्टम है, ये कॉन्स्टेंटली जो वर्ल्ड ओवर में जो चेंजेस हो रहे हैं, और इस चेंजेस में मैं जो 3-4 जो मेन मुद्दे हैं उसमें, वो क्या है कि जैसे डायग्नोसिस में कुछ स्ट्रीम्स में चेंजेस हो रहे हैं, नए इमेजिंग टेक्नोलॉजीज में चेंज हो रहा है। लैब एनालिटिक्स जैसे जो पहले हम सिर्फ ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट और ये सब से चल जा रहा था, क्लिनिकल टेस्ट से चालू होता था, वो शिफ्ट होकर के मॉलिक्यूलर टेस्ट में हो चुका है अभी। और ये सब के ऊपर इतना सारा डेटा वो क्रिएट होता है कि वो साधारण ह्यूमन इंटेलिजेंस से उसको हम एनालाइज नहीं कर सकते, इसलिए वो AI बेस्ड सिस्टम्स होता है उसको एनालाइज करने के लिए। इसी तरीके से थेरापेटिक्स में दो सिस्टम्स का प्रोमिनेंस हो चुका है। एक तो है जो रिडक्शनिस्ट अप्रोच बोले तो कि जो हम जो नॉर्मल मेडिकल साइंस है वो रिडक्शनिस्ट अप्रोच में होता है, वो सूक्ष्म की ओर जाता है। और दूसरा होता है होलिस्टिक अप्रोच, जो कि कंसोलिडेटेड बॉडी की ओर से देखा जाता है। दोनों का ही अपना ही महत्व है, और दोनों ही आखिरी में एक में जाकर के सम्मिलित होते हैं। लेकिन ये दोनों को यूज करने के जो अलग अलग उद्देश्य हैं, और हमारे इंडियन सिस्टम में आयुष मिनिस्ट्री बनने के बाद में और पिछले जो 4-5 साल में उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, उसमें इतना ज्यादा कोशिश किया गया है कि जो करंट एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम्स, और नॉट ओनली एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम्स है, जो रिडक्शनिस्ट साइंटिफिक सिस्टम्स है, उसके साथ में उसको जोड़ा जाए। तो ये काम चल रहा है, और इससे क्या होता है कि जो आयुष में जो भी आयाम है उसको इसके साथ में लिंक करने की पूरी कोशिश चल रही है, और काफी जगह सक्सेस भी हुआ उसमें। तो थेरापेटिक्स में हम जब देखते हैं तो दोनों चीज का उतना ही महत्व है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का भी उतना ही महत्व है, और ये ना सिर्फ हमारे ही राज्य का इश्यू है, ये वर्ल्ड ओवर में सभी को ये अभी ये ज्ञात हो चुका है कि प्रिवेंटिव उतना ही जरूरत है जितना कि क्यूरेटिव है। तो ये जो थेरापेटिक्स में जो चेंज हो रहा है, ये भी एक इतना फास्ट चेंज हो रहा है कि क्या हमारा इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम उसमें हेल्थ केयर सिस्टम मींस स्पेशली जो लीगल एक्ट्स रूल्स और ये सब है उससे मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और
तीसरा जो है नॉलेज बेसिस का जो क्रिएशन है, इतना ज्यादा नॉलेजेस निकल जा रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। और ये नॉलेज बेसिस क्या हो रहा है कि नॉलेज बेसिस तो क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन मीडिया जो होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट अपने हिसाब से करता है, और हर मीडिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म अपना अपना ही है, सोशल मीडिया का डिस्ट्रीब्यूशन अपना ही है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो नॉलेज बेसिस जो है, जो कि इंटरनेशनल भी है, अभी दोनों में नॉलेज बेसिस उतना ही इंपॉर्टेंट है। आपके जो आयुष के जो आयाम है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और नॉन आयुष और एलोपैथिक में जो नॉलेज बेसिस है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। दोनों में ये नॉलेज बेसिस को क्या हो रहा है कि इतना ज्यादा उसका वॉल्यूम बढ़ गया कि ये अभी साधारण मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स या रिसर्चर्स को खुद से वो लोग इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, वो एआई सिस्टम से इंटरप्रेट कर रहे हैं। अभी ये जो टेक्नोलॉजी का जो दौर चल रहा है उसके साथ हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, तो इस चीज से कई क्वेश्चन उठते हैं। डज द इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम अडेप्ट टू द चेंजिंग टेक्नोलॉजी? तो मेरा तो व्यक्तिगत मैं इसको उत्तर नहीं देना चाहता हूं, बट ऐसे एक ओपिनियन है कि कुछ जगह हमारा चेंजेस हो रहा है, और बट दूसरे जगह उतना चेंजेस नहीं देखने को आ रहा है। इसमें जो गैप जो हुआ है, ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का जो फास्ट चेंज जो चाहिए था वो उसके कारण हो रहा है, वो फास्ट चेंज नहीं हुआ वहां पे। और सेकंड क्वेश्चन उठता है, आर आवर एक्ट्स रूल्स एबल टू कवर द चेंज इन टेक्नोलॉजी? तो ये चेंज इन टेक्नोलॉजी, जैसे आप देखो कि हमारा जो सिस्टम है ये स्टेट डिपेंडेंट है, तो एक यूनियन गवर्नमेंट उसको कैसे सीमलेसली उसको इम्प्लीमेंट करे, देयर इज सम प्रॉब्लम हियर, क्योंकि ये एक्ट बन चुका है और कई स्टेट ने इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो ज्यादा से ज्यादा हम एक गाइडलाइन रूप के इसमें ही आ रहा है सब कुछ। जो गाइडलाइन अभी जैसे आप आईएमए का जो मेन कंट्रीब्यूटर है एम्स जो है, और प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूटर एम्स है, तो वो एम्स करता है उसमें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्ट्स और रूल्स को चेंज करना इट्स अ चैलेंज इन इटसेल्फ, बिकॉज states have gone into different directions, or it's now we have to think. So that is not in our purview as a grahak, so I am leaving it. The तीसरा क्वेश्चन है, does आयुष comes under medical establishment act? तो अभी क्या हुआ कि कोविड के चलते हुए नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बनाया गया है, क्योंकि आयुर्वेदिक systems जो है, that has been accepted as a successful preventive methodology, और इसका साइंटिफिक इक्विवेलेंट को भी प्राप्त हो चुका है कई जगह। तो इसलिए क्या हो गया, जो मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स जो अभी बने हुए हैं वो उसको रेफरेंस करते हुए जो बॉडी के जो सिस्टम्स है, जो इम्यून सिस्टम्स है, उसको इम्प्रूव करने की शक्ति है करके वो उस फंडामेंटल बेसिस में नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉर आयुर्वेद एंड योगा फॉर कोविड ये फाइनलाइज हो गया, ये रिलीज भी हो गया है अभी। तो आज के इसमें जैसे ये क्वेश्चन जैसे उठता है कि ये दोनों सिस्टम है, दोनों को यूज करना है नहीं करना है, एक बहुत कॉमन सा जजमेंट है ये। तो आई विल लीव इट टू द ऑडियंस इटसेल्फ एंड ग्राहक की जो प्रिवेंटिव है दैट इज डिफरेंट, क्यूरेटिव इज डिफरेंट। ओके, इतना शॉर्ट में उसका आंसर है। नेक्स्ट में जाता हूं। अभी जो लास्ट का जो ये है, जो सीपीए 2019 का जो एक्ट है उसमें हम हेल्थ केयर को कैसे देखते हैं, क्योंकि सीपीए 2019 ये फोकस करता है कि the person who wants to put up a case, he should be a consumer first, और in medical terms in which all cases वो आगे बढ़ सकता है उसमें। तो ऐसे कुछ फैक्ट्स बनाए हमने, और एक कुछ क्वेश्चन है मैं उसको रिपीट करता हूं कि इफ ये फर्स्ट क्वेश्चन है,
first question to who is a consumer, so that I just clarified it. Any person who buys goods or services for his personal use is a consumer. In medical terms, someone who is availing a medical services from a hospital, medical insurance company, medical store, or any kind of medical establishment can be considered as a consumer in purview of CPA 2019. Secondly, if I buy a Medicaid policy for my sibling, parent, friends, will my sibling, parent, friend be a consumer? यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि इस एक्ट में वो मेंशन किया गया है कि आप इसको फाइल कर सकते हो सीपीए में, मींस सिबलिंग, पेरेंट्स और फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे मेडिकल केसेस में कभी कभी दी एंड यूजर को फाइल करने की पोजीशन में नहीं होता होगा. If I am admitted for a surgery and I feel that there was a medical negligence due to which I have been partially disabled for life, will my sibling, parent, friend file for me? There's the same thing. Yes. अभी सीपीए 2019 में एक प्रोविजन ऐसा दिया गया है जो कि हमारे कार्यकर्ता को देखना चाहिए कि सीपीए 2019 में we have a provision for negotiations and settlement. Okay, but for healthcare, if you want to file a case in medical negligency, then there is no provision for settlement there. No provision for mutually understanding and coming to an agreement. Case will be handled by the provided CPA counselor who the committee will be appointing. एक और है कि if I run a medical shop और मैं कुछ इक्विपमेंट खरीदता हूं या कुछ यूज करता हूं, तो क्या मैं फाइल कर सकता हूं क्या? सीपीए 29 में मेडिकल स्टोर फाइल नहीं कर सकते हैं, एंड यूजर ही फाइल कर सकता है. ये सीपीए 2019 का ये है. मेडिकल नेग्लिजेंस एक बहुत ही एम्बिग्युअस टर्म है, और इस टर्म के कारण बहुत सारे केसेस ऐसे हुए कि वो काफी लंबे चले गए. और दूसरा ऐसा हुआ है कि हमारे जो मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है और जो प्रोसीजर कोड्स और जो डायग्नोसिस कोड्स, इसमें जो गाइडलाइंस है, मतलब एक व्यक्ति अगर किसी भी कारणवश या किसी भी एलिमेंट को लेकर के एक इंस्टीट्यूशन में जाता है, तो वो डॉक्टर या उसको क्या करना चाहिए? तो यूजुअल प्रोसीजर इज वो डायग्नोसिस रिपोर्ट होता है, उसके बाद में वो ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस रिपोर्ट वो ही विल प्रोवाइड द थेरापेटिक्स. डायग्नोसिस इटसेल्फ इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, और बिकॉज ये हमारा जो मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के जो गाइडलाइंस है, वो एक जो मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के जो गाइडलाइंस है, वो जैसे कार्डियोलॉजी का एक हार्ट अटैक का केस आ गया, तो क्या करना चाहिए, एक गाइडलाइंस जो बनाया है. बट वो क्या होता है कि सभी इश्यूज को कंसिडर करके सभी वेरिएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा वो. तो इससे क्या होता है कि उसका प्रायर हिस्ट्री क्या है, वो उस चीज के बारे में बात नहीं करता है. ऐसे तो क्या हुआ कि इंडियन मेडिकल आईएमए का जो भी गाइडलाइंस है, ऐसे काफी सारे चीजेस को छोड़ देता है. तो ये कहाँ आके एंड में रुक जाता है? जुडिशियल सिस्टम में आके रुक जाता है. जुडिशियल सिस्टम उसको फिर नए पैनल्स बना करके, मेडिकल पैनल्स बना करके उसको सॉल्व करता है. और एक चीज कई रूलिंग्स के साथ में अभी एक चीज क्लियर हुआ है कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस, अगर स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस में कुछ भी एक्सेप्टेड है और वो उस चीज का रिजल्ट दिखता है, तो दैट कैन बी टेकन एज ए रूलिंग फॉर द नेक्स्ट फॉर द हियरिंग, और उसका केसेस के जजमेंट के लिए. तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस के लिए मेडिकल पैनल बनता है, मेडिकल पैनल उसको
पुराने हिस्ट्री से लेकर के आते हैं कि इस पर्टिकुलर नियरली केसेस में क्या हुआ था, क्या इसको हम मेडिकल नेग्लिजेंस का इक्विवेलेंट कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं। तो धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि वो जो मेडिकल फ्रेटर्निटी भी है वो भी इम्प्रूव हो रहा है अभी। उसको भी ये समझ में आ रहा है कि मैं अपना प्रैक्टिस में ये चीजेस को ध्यान में रख करके इसका डायग्नोसिस रिपोर्ट दूं या प्रोसीजर का इंस्ट्रक्शंस दूं। तो ये जो सीपीए 2019 में कार्यकर्ता जो है उसको ये कॉम्प्लिकेशंस के कारण ये खुद का डिसीजन लेने के लिए इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया गया है, इसको लीगल कमिटी हैंडल करे, ऐसा ये है। तो हमने अभी आज के इसमें एक शॉर्ट में लिया है और क्योंकि इस मेडिकल इस इश्यूज के लिए वो केस बाय केस ज्यादा डेप्थ में जाना पड़ता है। तो इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जी। धन्यवाद सुधीर जी। एक्चुअली क्वेश्चंस है दिलीप जी का। दिलीप जी, आर यू देयर? हाँ, आई एम देयर। See, Sudhir ji, see, at one point of time, you are telling that the Ayurveda is getting established and being considered under the palliative curing. But preventive curing. Yeah, preventive. But on the other hand, the same has not got the official recognition so far. Even in the situation where it is doing much of the job what is needed for this current immunization process. How does it place itself against allopathic medicines? Okay. Yeah. See, जो इम्यूनाइजेशन का जो स्टैंडर्ड्स है, that is not linked to a person. Okay. ये जो ग्लोबली जो स्टैंडर्ड होता है इम्यूनाइजेशन का, वो क्या होता है कि उन एक पर्टिकुलर व्यक्ति का एक जेनेटिक कोड होता है दैट इज यूनिक. He has a very unique genetic code and you can describe him from that. But can he have a unique immunization code? The science is stuck up here. Okay, I will tell you where it is going. जो इम्यूनाइजेशन कोड होता है, ये क्या होता है कि इसमें जेनेटिक्स का एक रोल भी है. इम्यूनोलॉजिकल जो कैपेबिलिटी है वो जेनेटिक्स हेरिडिटरी से भी मिलता है, वो ट्रांसफर भी होता है. अब वो जेनेटिक कोड जो है, इसलिए मैं आपको बोला था कि ये जो मेडिकल साइंस है बहुत फास्ट मूविंग चीज है, क्योंकि इसका जो पेस है काफी फास्ट है. इसलिए क्या होता है कि जेनेटिक कोड्स जो स्टैंडर्ड है फॉर अ इंडिविजुअल, दैट यू कैन से एज अ स्टैंडर्ड, बट इम्यूनाइजेशन कोड फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल वो नहीं है, अभी बना नहीं है वो. If that has to be done, that only has to be based on the genetic code. तो वो एक जेनेटिक कोड जब एक व्यक्ति का हो जाएगा, उसका एक पार्ट होता है इम्यूनाइजेशन.